तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। दिस इज मी अंकुर दुबे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त आप सभी लोगों का। ये हमारी टीम है जो एमपीपीएससी और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन आपके लिए करवाती है दोस्त। सो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं सॉइल के बारे में। कल मैंने आपको एक जनरल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था सॉइल का। आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि सॉइल किस तरह से बनती है, क्षारीय क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, कौन कौन से ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में मदद भी करते हैं और उसको अफेक्टेड भी करते हैं। सो क्लास स्टार्ट करने के पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन में आपको अपना देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम अंकुर दुबे है, डॉक्टर हरि सिंह कॉल सेंटर यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। 5+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, एक सिलेक्शन ले चुका हूँ और और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मैं यहाँ पे टीच भी कर चुका हूँ। तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्त। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अराउंड 30+ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं। एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, नीट का हो, क्लैट का एग्जाम हो, और भी कोई ऐसे एग्जाम्स जो टॉप एग्जाम्स होते हैं हर एक फील्ड से रिलेटेड, वहाँ पर आप उनकी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इंडिया के जितनी भी टॉप एजुकेटर्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, वो यहाँ पर आपको टीच करते हुए मिलेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में मुरनाल पटेल सर बहुत इंडिया के टॉप एजुकेटर्स कहे जाते हैं। उसके अलावा सुदर्शन गुर्जर सर ज्योग्राफी में टॉप हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर पॉलिटी में। तो ये सारे के सारे एजुकेटर्स आपके मेंटर बन सकते हैं अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। उसके बाद आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। So go into Google Play Store and download the Unacademy's learning app and then choose your goal, whatever your goal is, whether it is MPPSC, UPSC or anything else. So choose your goal according to your wishes. If you are preparing for the MPPSC exam, then you must have to choose your goal MPPSC and Vyapam. Then you have to click on the get subscription button. So after clicking this button, you will get this type of page where you will see the price menu of all the plans for 1 month, 2, 3 months, 6 months, 1 year and 2 year. I recommended you for 1 year and 2 year plan because the uncertainty of all the exam in this pandemic situation is not very well. So I'm just saying ki you will choose 1 year and 2 year plans only. And if you use my code in this plan, my code is ADYT. AD is for my name Ankur Dubey, and you are watching me on YouTube. That is for YT. So if you use my code ADYT, so you will get 10% discount in any plan of this. Okay, so if suppose you are you want to buy an Academy's 1 year subscription, so the actual cost is around 8,800 rupees. But if you use my code, that is ADYT, then you will get 10% discount along with my personal mentorship. If you go for the 2 year plans, then you have to pay only 11,500 rupees. This is again discounted price, my dear friend. The actual price is 12,800 rupees. But if you use my code, that is ADYT, then this will give you 10% discount here. So use my code for discount along with my personal mentorship. That will, in this personal mentorship, you will get to know about how to write answers in main examination and what should be the strategy to crack any exam, and many more things you will get. So use my only code. So if you want another subscription just like uh, apart from the MPPSC like IIT, NET, ND or any other exam, then you can use my code here also. So in this course also you will get 10% discount here. So now talk about my courses. So first thing, I want to tell you about the polity courses. Unit 1 and Unit 2 is already completed by myself, and Unit 3 and Unit 4 is ongoing. So we have covered almost 20 to 21 classes in Unit 3, and there is only 7 to 8 classes. So around 22nd or 23rd November we will complete the major portion of Unit 3rd and talk about the Unit 4. तो इसमें भी हम लोगों ने 2 क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट करवा चुका हूँ और बहुत सारा पोर्शन में इसका भी आपका कवर हो चुका है। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राम मनोहर लोहिया, ये हम यूनिट 3rd में कवर कर लेंगे जल्द से जल्द, और यूनिट 4 वाला पोर्शन में हम लास्ट टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा, यूनिट 3rd और यूनिट 4th भी। फिर 5th बचेगा तो उसको भी मैं आपको जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तो ये देख लीजिए मेरे कुछ प्लान्स हैं जो कि मैं पॉलिटी की क्लासेस चला रहा हूँ, ज्योग्राफी की क्लासेस में आपका यूनिट 3 कर ही रहा हूँ, और इसके बाद बात बताना चाहता हूँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी कोर्सेज है 17 या 18 से मैं इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। जल्द आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। वैसे ये सुबह 11 बजे ही होने वाली है।
तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मृदा। तो कल मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, मृदा को रिलेटेड बता दी थी। कल हमने प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था काफ़ी डिटेल में। बहुत सारी चीज़ें हमने कल मृदा के बारे में पढ़ी थी। आज हम उसी चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो कल ये टॉपिक छूट गए थे, आज हम पढ़ेंगे मृदा जल, जिसको हम सॉइल वाटर बोलते हैं। तो सॉइल वाटर क्या होता है? देखिए, कभी भी आपने देखा होगा कि जब कभी आप प्लांट के लिए पानी दे रहे हैं तो थोड़ी देर तक तो वो पानी आपको ऊपर दिखता है, उसके बाद वो क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। तो पानी कैसे नीचे जाता है? तो जो क्या होता है, मृदा होती है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है कि वो पानी मृदा के नीचे चला जाता है। ठीक है, आप लोग ने भी गार्डनिंग वगैरह की होगी तो कभी प्लांट्स के लिए आपने पानी दिया होगा, तो थोड़ी देर तक तो आप देखते हो कि उस प्लांट के आजू बाजू पानी रहता है, फिर धीरे धीरे क्या चला जाता है, वो नीचे चले जाता है। तो इन्हीं पोर्स के कारण जो भी नीचे के हमारे जो भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इस वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। अब आपने तो पानी डाला है, तो पानी नीचे गया, तो इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, मृदा के जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये भी कई बार क्या होता है, यहाँ पर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, कई बार नीचे भी जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये पोषक तत्व पदार्थों में घुल जाते हैं, और घुलने के साथ ही क्या होता है, जो पौधों की जड़ें होती है ना, उनको ये आसानी से क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो आपके पानी डालने से क्या होता है कि वो पानी पानी तो जरूर नीचे जाएगा ही जाएगा, उन पोर्स के कारण। उन पोर्स के कारण वो क्या भी करेगा कि मृदा के जितने भी तत्व होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उस प्लांट के लिए, तो उन पानी में वो घुल जाएंगे, और घुल के क्या होंगे, वो भी नीचे की ओर चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, प्लांट अपना एक फूड भी वहां पर मृदा के माध्यम से यहाँ पे खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मृदा घोल। तो मृदा जल आपको मैंने बता दिया। अब मृदा घोल की बात करूं तो दोस्त ये क्या होते हैं, घुलित लवण होते हैं। ऑलरेडी दोस्त यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि जैसे मैंने आपको पानी में बताया ना कि पानी में घुलते हैं वो चीज़, यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे घुलित पूरे के पूरे वो लवण होते हैं। ये क्या होता है, एक घोल का माध्यम होता है। ये अधिकांश मृदा पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाने और पौधों के लिए की जाती है। देखो, मान लो अगर कोई मृदा है, उसमें ऐसे जैविक तत्व ही नहीं है कि जो पानी में डिजोल्व हो सके, तो फिर वो कैसे पहुंचेगा वहां तक, पेड़ों की जड़ों तक? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कई बार यहाँ पे हम खाद्य के माध्यम से या दूसरे पदार्थों के माध्यम से मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि खाद या कई बार हम नाइट्रोजन की वो व्हाइट कलर की गोलियां आती हैं, वो हम फेंक देते हैं मृदा में, थोड़े टाइम बाद देखोगे आप कि वो अपने आप डिजोल्व हो जाती है। वो क्या होता है ना, उनको फेंकने का हम हल्का सा पानी खींचते हैं ना, तो उनके माध्यम से वो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, और फिर वो फूड मृदा के अंदर चली जाती हैं, जिनको फिर प्लांट आसानी से एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा घोल क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद आता है मृदा लवणता, मतलब कि सॉइल सैलिनिटी क्या होती है। दोस्त, सॉइल सैलिनिटी या मृदा लवणता से मतलब ये होता है कि मृदा की सांद्रता कितनी है। सांद्रता से मतलब दोस्त ये होता है कि जो उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना उसमें आपको मिलेगा। देखो, जब मृदा की नमी कम होती है, मतलब कि जब मृदा में अगर आप देखोगे नमी नहीं है, थोड़ी सी वहां पे जो हार्ड होती है ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्त उसका जो वाष्पीकरण दल होता है वो बहुत ज्यादा हो चुका था। जैसे सपोज मान लो कहीं पे ज्यादा बारिश हो गई है, ठीक है, तो मृदा गीली होगी। अब कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जब धूप निकलती है तो मृदा कुछ टाइम बाद सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? क्योंकि उस मृदा में जितने भी जो पानी के तत्व होते हैं वो आधे तो डिजोल्व हो जाते हैं, और आधे क्या होते हैं, वाष्पीकरण के माध्यम से क्या होते हैं, वो ऊपर बादल वाटर वेपर बन के वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब मृदा का जब वाष्पीकरण होता है और जो जैविक तत्व जो नीचे की ओर पलायन कर जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारे तत्व क्या होते हैं, घुलनशील लवणों के साथ मृदा के नीचे की ओर चले जाते हैं, और उसके बाद उसकी सांद्रता को भी यहाँ पे वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मृदा सैलिनिटी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा मृदा सैलिनिटी में, एक दो टॉपिक और आते हैं। तो ये लवण पहले से ही मृदा में घोल के रूप में मौजूद हो सकते हैं, तथा यदि जल की मात्रा बढ़ती है तो कोशिका क्रिया द्वारा भूजल से ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर मृदा में अपने कुछ तत्व जरूर उनमें होते ही हैं, है ना। तत्व मतलब कि दोस्त यहाँ पे ये होता है कि जो मृदा होती है उसका केवल सिंगल फॉर्मेशन नहीं होता है कि किसी एक ही तत्व से बनी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है। ह्यूमस का भी मिक्सचर होती है ना, कार्बनिक पदार्थ का भी मिक्सचर होती है ना, उसमें रॉक के कंटेंट भी बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का वो यहाँ पे मिक्सचर होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो लवण पदार्थ होते हैं वो ऑलरेडी ही मृदा में यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। कई बार यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर का जल अगर आया है तो कई बार वो नीचे की ओर पलायन कर जाते हैं, कई बार नीचे से भी तो जल ऊपर की ओर आता है ना,
आपने देखा होगा कि या तो हेडपंप के माध्यम से किसी दूसरे जल स्रोत के माध्यम से नीचे का जल भी कई बार क्या हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो जितनी भी जो ऊपर वाली सॉइल की अगर उसकी सांद्रता यहाँ पे कम होगी तो नीचे का जल जैसे ही ऊपर आएगा तो उसकी जो सांद्रता होगी वो अधिक होने लगेगी। अब सैलिनिटी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा नमक आ रहा है ऊपर, तो उससे क्या होगा, पौधों के लिए ओबियसली हानिकारक ही होगा ना, चाहे वो पौधे हों या हम हों। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा साल्ट का इंटेक करेंगे ना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम देने वाला है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि किसी माध्यम से जब यहाँ पे क्या होता है, बारिश के कारण जब पूरे के पूरे जो सैलिन पोर्शन होता है, जब इसका मृदा का ऊपर आने लगता है ना, तो वो पौधों की उस उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी ये हो जाती है। अब बात कर लेते हैं मृदा का पीएच मान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्त, पीएच मान क्या होता है, क्षारीय और मृदा, है ना, क्षारीय और अम्लीय, सॉरी, जो हम बोलते हैं। तो पीएच क्या होता है दोस्त, एक तरह का एक स्केल हम कह सकते हैं, है जो 0 से लेकर जिसमें 14 तक की यहाँ पे डिजिट होती हैं। जो पीएच होता है वो हाइड्रोजन और सैलिनिटी, इन दोनों के बेसिस पे यहाँ पर हम उस किसी चीज़ का भी पीएच मान देखते हैं। इफ सपोज यहाँ पर देखिए, अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन हो गए और उसके तत्व यहाँ पर अगर आपको क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसकी हम यहाँ पे अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे क्या होगी, अम्लीय होगी या फिर वो क्या होगी, यहाँ पे क्षारीय होगी। तो हमारे लिए ना केवल मृदा का बल्कि और भी ऐसे तत्व होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरे हो गया, हमारे कुछ वेजिटेबल्स भी हो गए, उनकी भी यहाँ पर हम अम्लीयता और क्षारीयता को यहाँ पर पता कर सकते हैं कि उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, उनमें कितनी क्वांटिटी में वो मौजूद होते हैं। तो 0 से लेकर 14 तक ये स्केल होता है। 7 इसका हमने एक बेस नंबर रखा हुआ है, ठीक है, मिडिल का नंबर है। तो अगर कोई स्केल का क्वांटिटी अगर 7 के बेसिस में आ रही है, दैट मीन्स कि उसमें जो हमारा आयन हो गए और हाइड्रोजन हो गए, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ये चीज़ आपको पीएच स्केल में याद रखनी है। उसके बाद पीएच स्केल में कुछ और भी चीज़ें आपको बता दूं। अगर हमें मिट्टी में पीएच स्केल का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाप लेना है तो आयन घुलनशीलता पर होगा। ऐसे नहीं होगा वो कि केवल अगर हम हाइड्रोजन बेसिस पे देखना चाहें, तो उसमें आपको आयन की घुलनशीलता को भी उसमें आपको देखना होगा। अब घुलनशीलता को हम कैसे नापते हैं, तो इसका सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि मान लो अगर किसी स्केल का जो पीएच टेम्परेचर है अगर वो 6+ आ रहा है, मैं तो कहता हूँ 6.5+ आ रहा है, तो वो पौधों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लिटरली बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि 6.5 या 6 मैं तो 6 भी ले लो अगर आप प्राउड फिगर में, तो 6+ में क्या होता है कि जितनी भी जो मृदा के जितनी भी जो पीएच फैक्टर, जो हाइड्रोजन और जो आयन वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। और जब बहुत अच्छे तरह से हो जाते हैं तो जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, जो उनकी रूट्स होती है वो उनको बहुत ईजिली एब्जॉर्व कर सकती है। तो पीएच फैक्टर का सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि जितनी भी जो तत्व होंगे उसमें वो अगर 7 के अप्रॉक्स हो रहे हैं तो बहुत इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके अलावा कुछ छोटे तत्व भी होते हैं, है ना, और सबसे भारी वस्तुएं कम पीएच मान में अधिक घुलनशील होती हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए। ये क्वेश्चन भी शायद यूपीएससी या किसी एग्जाम में एक बार, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, ये किसी में पूछा गया था। उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारू बस्तें होती हैं वो ज़्यादा पीएच मान में अधिक घुलनशील होती हैं, तो ऐसे एक रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ था। तो ये नहीं है, वो कम पीएच मान में ज़्यादा घुलनशील होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे ऑक्सीडेशन वाली चीज़ें होंगी ना वो आपको कम पीएच मान में मिलेंगी। तो भारी जो वस्तु होंगी वो कम में होंगी, ना कि वो ज़्यादा में होंगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या करती हैं कि जितनी भी जो आपको भारी वस्तुएं आपको मृदा में मिलेंगी ना, ये कंट्रोलिंग का काम करती हैं। ठीक है, तो जितनी भी मृदा के जो संस्करण वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन सभी को ये कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये इनका मेनली यहाँ पर क्या होता है, काम होता है पीएच मान में। पीएच मान में एक दो चीज़ें और हैं कि मिट्टी के पीएच मान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। हाँ, आपको ये चीज़ बता दूं कि मृदा की जो सैलिनिटी होती है या उसका जो पीएच मान होता है उसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से जो सबसे प्रमुख आपको कारक मिलेगा वो मिलेगा वनस्पति। कई बार आपने ट्री कुछ ऐसे देखे होंगे कि वो मृदा की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देते हैं, मतलब कि वो ट्री तो आपको जिंदा मिल जाएगा पर उसके आजू बाजू का जितना भी एरिया होगा ना, वो आप देखोगे एक मरुस्थल और मरु टाइप का हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, उसका कारण ही यही है कि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मृदा की पूरी उर्वरक शक्ति को क्या एब्जॉर्व कर लेते हैं। कुछ आपको जलवायु फैक्टर्स भी मिल जाएंगे कि जहाँ पर अधिक बारिश हो रही होगी तो वहां पर मृदा उर्वरक हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स की अगर मैं आपको बात करूं तो कुछ चट्टानी, कुछ एल्टीट्यूड वाइज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जिसके माध्यम से यहाँ पर मृदा का पीएच मान क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, अब मृदा के कुछ जैविक गुणों के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्लीज आप अपनी जो भी आंसर कॉपीज है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा।
ठीक है, तो आपको टाइम पता ही है और सारी चीज़ें हम मीन्स के यहाँ पर कवर करते हुए चल रहा है। ज्योग्राफी हमारा चल ही रहा है, हिस्ट्री हमारा एंशिएंट और मिडाइवल हो ही चुका है, पॉलिटी का हम यूनिट 4 भी, यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट होने वाला है, 1 एंड 2 मैं ऑलरेडी आपका करा चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके कोर्सेज लेकर आया हूँ, ठीक है, और दिवाली के बाद तो कुछ टाइम तक आपको और बहुत सारे मेरे कोर्सेज मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, है ना। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड दैट इज ADYT, है ना। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट, सो यूज ओनली माई कोड दैट इज ADYT। सो मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ जैविक पदार्थों के बारे में यहाँ पे बता रहा था कि हाँ, हमने हमने पीएच मान कवर कर लिया। अब हम मृदा के जैविक गुण देखते हैं। तो मृदा एक मृत नहीं द्रव्यमान जीव होता है। सबसे पहली चीज तो आप इसको ये याद रखिए, क्योंकि कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये एक मृत जीव टाइप का है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कैसा है, द्रव्यमान जीव है, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत जीवों का घर है। अनगिनत जीवों का घर। दुनिया में जितने भी आपको बायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे ना, उन सारे के सारों का रेसिडेंस कहीं ना कहीं मिट्टी में होगा। आप और हमारा घर भी कहीं ना कहीं मिट्टी से है। आप पूछोगे क्यों सर, मेरा तो नहीं है, मेरा तो सीमेंट से बना हुआ है। तो मेरे भाई और मेरी बहन, आपके घर में जो ईंट लगी हुई है वो तो आपकी लाल पीली मिट्टी से ही बनी हुई है ना। तो इनडायरेक्टली आपका घर मिट्टी का नहीं हुआ, क्योंकि ईंट से ही बना है, ठीक है। हाँ, अब वो बात अलग है कि बड़े बड़े वो सीमेंट के ब्लॉक्स आने लगे हैं, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकते जितना एक मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको उसके कार्बनिक पदार्थ बताए थे, ठीक है। कुछ मृदा के जैविक गुणों के बारे में यहाँ पर हम और बात कर लेते हैं। अब मृदा के जितने भी जो जैविक गुण होते हैं ना, उनको कुछ हम पॉइंट्स पे समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक क्या, जिसको हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो जंतु एवं पादप दोनों दोनों के समग्र रूप से मृदा की गुणवत्ता, उर्वरकता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ये ह्यूमस के निर्माण में भी सहायक होते हैं। सिंपल सी चीज बताऊं, जैविक जैविक मतलब दोस्त यहाँ पे बायोटिक फैक्टर, बायोटिक मतलब जिसमें कोई जान है, ठीक है। तो जितने भी आपको छोटे छोटे से जीव जंतु मिलेंगे, और इसके अलावा पादप मतलब जितना भी आपको जो प्लांट्स और वेजिटेशन मिलेगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता सकता मतलब कि जो उसकी फर्टिलिटी होती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी होती है, और तो उसका जो स्टैग्नेशन होता है मतलब स्थिरता होती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ कि मृदा की गुणवत्ता की बात करूँ, तो अगर कोई जीव मर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग गाँव वाले, कहीं आप दफनाते तो नहीं इतनी बड़ी भैंस को, तो ये लोग छोड़ देते हैं गांव में, तो वो अपने आप डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो जितने भी जो डिकम्पोज होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मृदा से ही आते हैं, और उस पूरी की पूरी बॉडी को वो डिकम्पोज करके क्या कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। और जो आसपास का पर्टिकुलर एरिया होता है ना, वहां पे फिर आपको खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होते हैं हमारे एक जैविक घटक। जैविक घटक के बाद दूसरा आता है दोस्त हमारा, सॉरी, इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं जैविक घटक में, कि मृदा में जीवों की एक विशाल और विस्तार श्रृंखला होती है, जिसमें एक बड़ा बड़ा हिस्सा पादप शरीर का भी होता है। तो ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट आपको एक समझाया कि कुछ भी कोई जीव जंतु हो या पादप हो, पादप मतलब कि दोस्त यहाँ पे प्लांट से होता है, वेजिटेशन से, तो कोई भी हो इसमें से, ये सारे के सारे डिकम्पोजर्स उसको क्या कर देंगे, कंपोस्ट कर देंगे, और पूरे के पूरे उसकी बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक करके मृदा में या सॉइल में वहां पे वो क्या कर देंगे, उनको डिसॉल्व कर देंगे। यही चीज यहाँ पर इसमें लिख रखी है, ओके। इसके बाद मृदा के जैविक गुणों में कुछ और भी चीज आती है कि मृदा के जैविक जैविक घटक पोषक तत्वों के चक्रण और निष्कर्षण, खनिजों में जैव रासायनिक अपक्षय। तो इसमें सिंपल सी बात में अगर आपको बताऊं, थ्योरेटिकल अगर आप इतना डिटेल में पढ़ोगे ना, तो कई बार मुझे भी पीडीएफ में समझ में नहीं आती चीजें। मैं क्या करता हूँ, केवल चीजों को समझता हूँ। लिखना तो अपने आप आ जाएगा अगर आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। यहाँ पर इनके द्वारा इतना यहाँ पर कहा जा रहा है कि मृदा के जितने भी जैविक घटक पोषक होते हैं, जैविक घटक पोषक मतलब जो भी मैं आपको डिकम्पोजर्स का बता रहा था, नाइट्रोजन का बता रहा था, जितनी भी आपके लिए यहाँ पर ये जितने भी पोषक तत्व मिलेंगे ना, ये क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग रिएक्शन भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए अगर कहीं पर फ्लड आई हुई है, ठीक है, तो फ्लड आने के बाद तो जलोढ़ मिट्टी वहां पर बिछा दी जाती है, तो वो वैसे भी कैसी होती है, उर्वरक होती है। कई बार यहाँ पर क्या होता है, यही जो मैंने आपको फैक्टर बताया ना, कि बाढ़ आ गई या ग्लेशियर खिसक गया या कहीं लैंडस्लाइड हो गई, तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, मृदा के जैविक तत्व भी यहाँ पे प्रभावित काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इनका जो गुण है वो रासायनिक साइंस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दोस्त इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पे अदा करते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें मैं जो आपको मृदा के जैविक तत्व में बताना चाहता हूँ, कि मृदा सूक्ष्मजीव संख्याओं में होते हैं और रूपों में, कार्यों में एक विशाल विविधता है। तो वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल्स होते हैं। ये वही बॉडी को यहाँ पे ब्रेक करके मृदा के लिए एक सहायता के रूप का भी काम करते हैं।
पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि माइक्रोबैलिसिस का हो जाता है, ठीक है, शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, ये सारे के सारे भी हमारे मृदा के जैविक गुणों में से एक है। तो डिटेल से समझाता हूँ आपको कौन सा ग्रुप आपका कब काम का है। तो सबसे पहले कवक और माइसेलिया की हम बात करें तो ये एक सूक्ष्म धागे की तरह होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म धागा। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या होता है, थ्रेड होते हैं। ये क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। तो आपने कई बार किसी पौधे को उखाड़ कर देखा होगा तो आपको उसकी जड़ व्हाइट कलर की एक रूट दिखी होगी, ठीक है। तो जितने भी ये होते हैं आपके लिए उसमें कहाँ मिलेंगे, पौधों की जड़ों में ही आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्लूकोज और लिग्नाइट बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इनको हम प्रतिरोधी भी बोलते हैं, जी हाँ। तो सबसे बड़ा हिस्सा दोस्त यहाँ पे किसका हो रहा है हमारा, है ना, प्रतिरोधी या सेल्यूकस और लिग्नाइन का होता है। मृदा की ह्यूमस का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे कवक मृत बन के भी रह जाता है। ये चीज भी दोस्त यहाँ पे देखोगे कि एक उनको कवक बन के भी यहाँ पे वो चीज निकल चुकी है। नेक्स्ट मृदा के कुछ गुणों में और देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बता दिया हमने। अब शैवाल की हम बात कर लेते हैं। तो शैवाल क्या होता है, ये भी बहुत छोटे छोटे आकार के दोस्त यहाँ पे आपको पौधे मिलेंगे जिनको हम एल्गीज कहते हैं, है ना। तो एल्गीज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं जैविक गुणों में। देखो इसमें क्या होता है दोस्त, ये बहुत छोटे छोटे, कई बार आपने देखा ना कई भी लग जाती है हमारे घर में, टंकी वगैरह में काई जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, कई लग जाती है। तो आमतौर पर हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते, पर खेतों वगैरह में आप देखोगे तो गीली मिट्टी की सतह पर ये सबसे ज्यादा देखने मिलेंगे। सबसे ज्यादा हरे हरे टाइप के आपको अलग दिखने लगेंगे। जैसे अगर आप सागर में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारा तालाब है वो जल कुंभी जैसा दिख रहा है ना, सेम चीज यहाँ पर भी आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो एल्गीज भी अफेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ कार्बनिक पदार्थ की यहाँ पे बात कर लें तो अभी तक मैंने आपको बाकी सारी चीजें बता दी, अब कुछ कार्बनिक पदार्थ में देखते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ पौधों एवं अन्य जीवों के अवशेष होते हैं जो मिट्टी में मिले रहते हैं। मतलब कि अगर मैंने जो अभी बताया कि सपोज किसी गांव में कोई भैंस मर गई है, ठीक है, तो गांव वाले क्या करते हैं, उस भैंस को दफनाते और जलाते नहीं है। उस भैंस को वो लोग किसी गांव में अपने ही खेत में या किसी दूसरे के खेत में किसी दूसरी जगह डाल देंगे कि बदबू वहां तक नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। अब जितने भी मिट्टी के अंदर हमारे जितने आप देखोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, उस पूरी की पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, पूरी की पूरी डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। अब उसके डिकम्पोज होने के बाद जो मृदा का आसपास का रंग होगा वो हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा भूरा देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया, किस तरह से यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को यहाँ पे हम देखते हैं। तो कोई भी मृदा हो, चाहे वो लेटराइट हो, ब्लैक हो, जलोढ़ हो, कोई भी मृदा हो, आठों टाइप में से सारे के सारे मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों से ही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर चट्टान ही होती है, पर दोस्त यहाँ पे मूल जो मृदा का निर्माण होता है वो चट्टानों से होता है। चट्टान क्या होती है कि कोई भी मैग्मा है, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है, तो मैग्मा हमारे भूपर्पटी पर आ चुका है। अब भूपर्पटी के आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको उस मैग्मा का, ठीक है, मैग्मा भूपर्पटी पे आ गया, लावा कहने लगते हैं फिर हम उसको। फिर यही जो लावा होता है कि वातावरण के कारण वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ठीक है। आप बाहर का उसका आउटर का एरिया देखोगे तो वो आपको ठंडा दिखाई देगा, ठीक है। तो ठंडा होगा तो जम जाएगा, और जम जाएगा तो सबसे पहले प्राथमिक चट्टानों का निर्माण होगा। तो लावा के जमने के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम प्राथमिक चट्टानें ही कहते हैं, ठीक है। तो सभी मृदा फिर जब उन प्राथमिक चट्टानों का किसी प्राकृतिक कारणों के कारण, जैसे कि चाहे या बाढ़ हो या ज्यादा बारिश हो रही हो या गर्मी ज्यादा हो रही है, तो उसकी जो मेजर खुद उस चट्टान की जो मेजर क्वालिटी होती होगी वो धीरे धीरे खुद कम हो जाएगी इन फैक्टर्स के कारण, ठीक है। तो फिर जब कुछ कम हो जाएगी उसकी क्वालिटी तो वो कुछ पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो जिनको हम फिर सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं जब वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वही सेडिमेंट्री रॉक का या इग्निशियस रॉक का कुछ कारणों से जब पूरा का पूरा उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तब यहाँ पे हमारी मृदा का निर्माण आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो मृदा के लिए ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे मृदा का यहाँ पर निर्माण होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि मृदा का निर्माण यहाँ पे कैसे होता है। इसके अलावा भी दोस्त यहाँ पे मृदा निर्माण की प्रक्रिया को हम यहाँ पे पैडोजेनेसिस बोलते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत बार छोटे मोटे एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पैडोजेनेसिस क्या होती है, इसकी यहाँ पर प्रक्रिया होती है। जलवायु जल घनत्व के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसे कुछ कारक हैं जो यहाँ पर इसको मृदा के अपक्षय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। मतलब इरोजन को आप देखोगे तो कुछ ऐसे हमारे जैविक रासायनिक ऐसे कुछ कारण हैं जो मृदा को क्या करते हैं यहाँ पे इरोड कर सकते हैं, ठीक है, या अपर्दन करते हैं।
अब देखिए सबसे पहला आता है इसमें भौतिक अपक्षय, ये जिसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। ये क्या होता है? तो दोस्त यांत्रिक क्रिया के परिणाम से चट्टानों का टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो यांत्रिक क्रिया के कारण जब चट्टानें टूटती हैं तो उसको हम भौतिक अपक्षय के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा तापमान में परिवर्तन, घर्षण, पाला, चट्टाने, इन सारों के कारण भी यहाँ पर भौतिक अपक्षय, भौतिक मतलब फिजिकली जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फिजिकली किसी भी चीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। ठीक है, या हमारे द्वारा ये चीज की जा रही है, तो उससे जो निर्माण होगा वो यहाँ पर आपका मृदा का ही निर्माण होगा। ठीक है, हमारे द्वारा मतलब कि माइनिंग्स आपने बड़ी बड़ी देख रखी होंगी ना। दूसरा होता है रासायनिक कारणों के कारण भी मृदा के निर्माण की प्रक्रिया। अब रासायनिक कारणों से कैसे हो जाती है, तो इस चीज को आप समझो। कई बार अगर मान लो हम कहीं ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिल करने के बाद हम वहां पे पानी या कोई भी नेचुरल चीज निकाल रहे हैं, तो ड्रिल करने से आप देखोगे कि चट्टानों का जो बेस होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, और फिर कालांतर में जाके उन्हीं चट्टानों से धीरे धीरे यहाँ पर और वो बारीक होंगी तो पाउडरी शेप में हो जाएंगी, तो हम उसको मृदा की संग्रह कहने लगते हैं। तो ये होता है हमारा केमिकल वेदरिंग। इसके बाद लास्ट आता है दोस्त हमारा जैविक या अपक्षय। सेम चीज दोस्त यहाँ पर भी है। इसमें जैविक अक्षय में जीवित चीजों के द्वारा होता है, मतलब कि जो मैं अभी आपको एक भैंस का मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो उन क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर जैविक अपक्षय भी आपको देखने मिलेगा। ओके, देख लीजिए। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो मृदा निर्माण के लिए अफेक्टेड कर रहे थे, तो देखिए मृदा निर्माण की मुख्य धाराएं 5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती हैं। एक तो हो गया जनक पदार्थ, दूसरा हो गया जीवित जंतु, तीसरा हो गया जलवायु, चौथा हो गया आपका यहाँ पे स्थलकृतियां और समय। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर सॉइल के इरोजन को और फॉर्मेशन को अफेक्टेड करते हैं। So this is for today only दोस्त, प्लीज यूज माई कोड ADYT फॉर 10% डिस्काउंट। ओके, सो सबसे पहले अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। सो डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, चूज योर गोल MPPSC एंड व्यापम, देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन बटन। सो यूज माई कोड ADYT फॉर 10% डिस्काउंट माई डियर फ्रेंड। ये आपको 10% डिस्काउंट देगा। उसके साथ साथ मैं आपको हर एक पहलू पर बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम्स को करेक्ट किया जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना। बाय बाय, गुड नाइट।